Hello everyone, welcome to your own platform Adioachievers. In today's video, I am going to explain and continue this carbon and compounds chapter and will be taking in detail the saturated and unsaturated carbon compounds. Let's begin with the positive thought, which says that time is always right to do what is right. So whatever is right for you, start doing that right now, because the time is to do whatever is right now. Okay, let's start with the hydrocarbons. We have started this topic in the last video as well. Now in this I'm just taking a brief. पिछले वीडियो से थोड़ा सा brief आपको explain कर रहे हैं and इसमें थोड़े से points और add करके I have prepared this one for you. Now the first one, as we discussed in last video, that there are three types of covalent bonding which is found in carbon compounds. That first one is single bond, second is double bond and triple bond. Now what are the characteristics of these bonds, how they are formed and how they are represented, we'll take in little bit brief. Okay, now when we talk about the single compound, we have seen that when we talk about this single bond, we have discussed in last video also that these are formed by sharing of one pair of electrons. How it is shared? By the one pair of electrons. When there is a one pair of electrons sharing taking place between the two carbon-carbon atoms, then it is a single bond form. It is represented by a single line, as you can see, like it is like a single line. And when there is a one pair of electron sharing is there, then it is single bond which is formed. जब दो carbon compounds के बीच में one electron का sharing होता है, that means एक pair का sharing होता है, तब ये बनता है single bond. और single bond को हम कैसे represent करते हैं? जब हम ये इसको लिखते हैं, हम एक single line की तरह represent करते हैं single bond को. Now ये organic compound जिनमें single bond होते हैं, उन्हें हम कहते हैं saturated carbon compounds और saturated hydrocarbons. Now saturated कैसे? Because इसको कनेक्ट करिए satisfied satisfied means they are more of less satisfied, they don't want to react with anyone else. So ये saturated होने से क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत less reactive हो जाते हैं and this bond, ये जो single bond form हुआ है, ये काफ़ी strong bond होता है. It's not so easy to break that bond. Okay, so this is very this single bond is quite strong and do not break easily during the chemical reactions. जब chemical reaction होगी, ये bond easily break नहीं होगा. Okay, but a replacement reaction, substitution reaction can take place. Like hydrogen can be replaced by some other element or the group. Fine. Now, second bond is the double bond. Now, as the word itself, double is saying, मतलब two pairs. Double means two. Okay, तो single bond में हमारे पास एक pair इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग था और डबल में टू पेयर्स का शेयरिंग है, टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स. इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज sharing of two electron pair. It is represented by a double line. Now the carbon compounds और the hydrocarbon जिनमें double bond present होता है, उनको हम कहते हैं unsaturated. Unsaturated मतलब इसको satisfied नहीं है वो अभी भी, and it can try to react with the other compounds or the groups. And इसका क्या है, इसके reactive होने से ये जो double bond है, it is not so strong. It breaks down during a chemical reaction. जब भी chemical reaction होती है तो ये break down होता है, because ये जो bond है ये उतना strong नहीं है और इसका presence इस compound को थोड़ा chemically reactive बना देता है. Okay, now comes the third bond, that is a triple bond. Okay, so triple bond, as the word itself is saying, triple pair of electrons will be shared. जब दो compounds के बीच में 3 electron pairs का sharing होगा, 3 from one and 3 from other, तो ये बन जाता है triple bond. Okay, और इसको हम कैसे represent करते हैं? Just like a single bond is represented by a single line, double bond is represented by a double line, and जिन भी carbon atoms के बीच में 3 pair of electrons का sharing होगा, that becomes a triple line. Okay, by mistake I have written here double. It is basically the triple line. Okay,
So it is represented by a triple line. Okay, sorry for this. So this is represented by a triple line. Okay, I'm not so efficient at writing with this. Okay, so this is represented by a triple line. As you can see here that they have to be represented by this triple line. Double bond is represented by a double line and single bond is represented by a single line. Fine. Now, just like double bond, these compounds are also unsaturated carbon compounds. These are also not satisfied ones. So ये भी बहुत reactive होते हैं. They try to react with the different compounds. और ये जो bond है double bond या triple bond, ये दोनों chemical reaction के time पर break हो जाते हैं. And so the addition reactions are also possible in these compounds. Okay, so this is the basic of the bondings present in covalent in this carbon compound. This covalent bonding is present. Okay, moving on further, when we talk about the different types of hydrocarbons or the classification of hydrocarbon, कि ये hydrocarbons कितने type के होते हैं, how they are different from each other. So जब हम ये study करते हैं तो we see that हाइड्रोकार्बन्स को हम फर्स्ट डिवाइड कर सकते हैं टू ब्रॉड कैटेगरीज में. फर्स्ट इट इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जिसको हम एसाइक्लिक भी कहते हैं. ओके, एंड सेकंड कम्स इज द क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स जिसे हम साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं. फाइन, ओपन चेन है जैसा कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है, चेन ओपन है. क्लोज साइक्लिक मीन्स क्लोज्ड है. ओके, फाइन. नाउ दिस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. जैसा कि हमने अभी पढ़ा, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सैचुरेटेड होगा, अगर किसी भी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड कार्बन होंगे, कार्बन कंपाउंड्स होंगे या हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं. नाउ दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या आते हैं, उसमें आते हैं एल्केन्स. ओके, ये वो कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि सिंगल बॉन्ड से फॉर्म हुए हैं, इनमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. फाइन. सेकंड आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. जैसा कि मैंने कहा था, सैचुरेटेड को सेटिस्फाइड से कनेक्ट करो. सैचुरेटेड सेटिस्फाइड, अनसैचुरेटेड नॉट सेटिस्फाइड. फाइन. सो ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये कौन से हैं, जो कि सेटिस्फाइड नहीं है. सो दे वांट टू रिएक्ट फर्दर एंड ये बनाते हैं एल्कीन्स. ओके, ये क्या बना रहे हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स. एल्कीन्स एंड एल्काइन्स. इसमें लास्ट में होता है ENE एंड इधर आता है YNE. वी विल बी डूइंग दिस फर्दर इन द नॉमेनक्लेचर कि हम ये कैसे इनको हम नेमिंग करते हैं कंपाउंड्स का, तब हम इसको ज़्यादा डिटेल में करेंगे. नाउ कम्स इज द क्लोज्ड चेन जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है ये साइकिल है, क्लोज्ड चेन्स है, ऐसा सर्कल है, ओपन एंडेड नहीं है. ओके, और नाउ ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स है इनको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक. ओके, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. फाइन. और ये जो एरोमेटिक है हमारे, इसको दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एरोमा, जो कि ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्मेल. सो दीज ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है ये वो कार्बन कंपाउंड्स हैं जो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर्स हैं एंड विच गिव्स आउट ए ब्यूटिफुल एरोमा, दैट मीन्स स्मेल. ओके, सो इसके बारे में हम फर्दर आपकी बुक में इस ईयर ज़्यादा डिटेल में नहीं है ये क्लोज चेन्स एंड सो एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट विल इन फर्दर क्लासेस विल बी डूइंग इट इन मोर डिटेल. सो हाइड्रोकार्बन्स कितने हो गए, ओपन चेन, क्लोज्ड चेन. ओपन चेन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड होते हैं. सिमिलरली साइक्लिक कंपाउंड्स जो आपके साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं या क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं ये भी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हो सकते हैं. नाउ एरोमेटिक में भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पॉसिबल है और एलिसाइक्लिक में भी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड पॉसिबल है. ओके, सो दैट डिविजन फर्दर आई हैव नॉट गिवन यू हियर. फाइन. Moving further with this. Now, next comes is the alkanes. We'll be doing this in little bit detail. Alkanes, as the word is indicating, ये saturated hydrocarbons हैं. ओके, alkanes क्या है, saturated hydrocarbons है. Now, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन atoms are linked by the single बॉन्ड. ओके, यहाँ पर क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि किससे बना है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
बोथ द कार्बन एटम्स, जिसमें कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है. फाइन. नाउ दीज आर कॉल्ड एल्केन्स. ओके, सो वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और वो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स हमारे कहलाते हैं एल्केन्स. और इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स. पैराफिन्स का मतलब क्या है? पैरम मीन्स लिटिल एंड एफिनिस मीन्स एफिनिटी. इनमें लिटिल एफिनिटी है रिएक्ट करने की, इसलिए हम बोलते हैं एल्केन्स आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स. और ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स वी कैन टेक हियर: मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन. देयर आर सेवरल कंपाउंड्स विच यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक्स. ओके, जैसे आप देख सकते हैं हियर, दिस इज मीथेन. ओके, ये मीथेन है. मीथेन में आपने देखा क्या है? 1 कार्बन एटम है जो कि कार्बन का 4 वैलेंसी है. तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन से जुड़कर इसका वैलेंसी कंप्लीट हो गया है. और हाइड्रोजन को भी क्या हुआ है? कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया है, तो हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. हाइड्रोजन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. ओके, सो हाइड्रोजन का वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो जाता है एंड कार्बन का भी हो जाता है. तो हर एक सिंगल बॉन्ड में क्या है? हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग है. ओके, मतलब शेयरिंग है. फाइन. नाउ अगर हम बात करें इथेन की, एज यू कैन सी हियर 2 कार्बन एटम्स को हम बोलते हैं इथेन. फाइन. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सभी ये आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं. नाउ कम्स इज द प्रोपेन, जिसमें कि 3 कार्बन एटम्स हैं. यहाँ पर सभी फिर से सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं. फाइन. Now moving on further to the unsaturated hydrocarbons. Okay, unsaturated hydrocarbons, as I said, satisfied, saturated, unsatisfied, unsaturated. Okay, so ये क्या है? वो हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा आपको. फाइन. और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है. इनका डिवीजन हमने किया है 2 कैटेगरीज में, एल्कीन एंड एल्काइन. ओके, एल्कीन एंड alkyne. Now what are alkenes? Alkenes are the carbon compounds or hydrocarbons which have double bond in their chain. Okay, उस चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. फाइन. एंड इनको हम ओलिफिन या फिर एल्कीन कहते हैं. ओके, ओलिफिन एंड एल्कीन. एग्जाम्पल्स वही है, नेम वैसा ही रहता है, सिर्फ एल्केन में ANE लग रहा है और एंड एल्कीन में ENE लग रहा है. ओके, ध्यान रखना ये वर्ड इसी से आ जाता है, एल्कीन ENE. सो दिस इन कम्स इन द लास्ट इन द नेमिंग ऑफ एल्कीन कंपाउंड्स. ओके, सो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमारा 3 कार्बन एटम्स का चेन है, 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3rd कार्बन एटम. और यहाँ पर 1 पे डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड यहाँ पर भी पॉसिबल था. ठीक है, तो ये कहीं पर भी हो सकता है. तो हमारा 3 कार्बन एटम्स के होने से क्या बन गया है? ये प्रोपीन. ओके, यहाँ पर मैंने इथीन का स्ट्रक्चर नहीं दिया. इथीन में क्या होगा? 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है. फाइन. नाउ ये क्या हो गया हमारा? ये कौन सा कंपाउंड है? काउंट करिए, 1 2 3 एंड 4. ये 4 कार्बन एटम्स का चेन है. तो ये क्या हो गया है? एंड विच इज ऑल्सो हैविंग द डबल बॉन्ड. तो ये हमारा बन गया है ब्यूटीन. ओके, ध्यान रखिएगा, इन लगा रहे हैं हम. एल्केन में हम लगाएंगे ब्यूटेन. और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 4 कार्बन एटम के चेन में, तो ये बन जाता है ब्यूटीन इन. ओके, ENE. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, एल्काइन. ओके, एल्काइन क्या है? these are the compound which are having कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. अगर 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं एल्काइन. ओके, एल्काइन्स. ठीक है, और इसके एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन. ओके, इसमें आप ध्यान रखें जो लास्ट के 3 लेटर्स हैं YNE, यही हम नाम में लगा देते हैं. प्रोपेन सिंगल बॉन्ड 3 कार्बन एटम, प्रोपीन 3 कार्बन एटम विद अ डबल बॉन्ड इन इट, एंड प्रोपाइन 3 कार्बन एटम चेन जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड है. तो जैसे जैसे बॉन्ड चेंज होता है, बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम होगा? एन आ जाएगा. अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ गया है, ना ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड सभी में ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सारे कार्बन एटम्स के बीच में हो. अगर एक में होगा तो भी वो एल्काइन ही कहलाएगा. फाइन. और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा 1, ये 2 एंड ये
3 कार्बन एटम्स का चेन है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोपाइन। ओके, और ये अगर इसको टिपिकली नेमिंग बाद में देखेंगे आप, जैसे ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में प्रेजेंट, तो फर्स्ट 1 प्रोपाइन। ओके, ब्यूटाइन, यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितने हैं कार्बन कंपाउंड, हम काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। ये 4 कार्बन कंपाउंड्स का 4 कार्बन का चेन है, तो ये हमारा हो गया ब्यूटाइन। ओके, और यहाँ पर हमारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? 2 पोजीशन पर है। ये इंपॉर्टेंट होता है नेमिंग में, जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे। ओके, आफ्टर स्टडिंग अबाउट एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, नाउ देयर इज अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसकी सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स ओपन चेन नहीं होते, क्लोज चेन भी होते हैं। फाइन, आई एम नॉट टेकिंग मच मोर डिटेल अबाउट द क्लोज चेन, बट द वंस विच आई एम गिविंग यू हियर इज कि बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो साइकिल बना सकते हैं, जैसे 3 कार्बन चेन का भी क्लोज ट्राइंगल शेप क्लोज चेन पॉसिबल है, ब्यूटेन का भी प्रेजेंट पॉसिबल है, पेंटीन का भी पॉसिबल है। सो जो कॉमन कंपाउंड्स हैं विच आर लाइक बेंजीन है, जो बेंजीन होता है दिस C6H6, ओके, C6H6, ये जो है दिस इज द पैरेंट कंपाउंड ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जो साइकिल चेन में साइक्लिक का हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एक स्पेसिफिक एरोमा देते हैं जो डिफरेंट कंपाउंड्स को, दे आर द एरोमेटिक, एंड इसमें बेंजीन से बने होते हैं, ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। बेंजीन के साथ कुछ और कंपाउंड्स के जुड़ने से ये डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनाते हैं, वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। फाइन, साइकिल चेन में भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये डबल बॉन्ड पॉसिबल है, एज यू कैन सी हियर दिस इज देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स हियर ऑल्सो, एंड इन चेन्स ऑल्सो द ट्रिपल बॉन्ड्स आर ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल कंफ्यूजन मत रहिएगा कि इट इज ओनली सिंगल बॉन्ड विच इज फाउंड इन चेन्स। चेन्स में भी सैचुरेटेड, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड cyclic compounds, that means double and triple bonds are also possible. Okay, and this among this cyclic compounds जो lower rings होती है, lower rings का मतलब 3 कार्बन रिंग, 4 कार्बन रिंग, ये थोड़ा अनस्टेबल होती है, ये जल्दी रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड्स बना लेती है, बट द हायर रिंग्स आर क्वाइट स्टेबल। फाइन, ये इतना जल्दी रिंग्स टूटती नहीं है, दे कैन, सम कंपाउंड कैन बी रिप्लेस्ड। ओके, जैसे हाइड्रोजन को कोई रिप्लेस करके कोई और ग्रुप अटैच हो गया, ये पॉसिबल है, बट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती है। फाइन, मूविंग ऑन फर्दर टू द होमोलोगस सीरीज, जैसे कि आपने देखा होगा, अभी जैसे हम बात करते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आता है। और अगर हम बात करें मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन हर एक ये जो एक कार्बन एटम के बढ़ने से जो हमारा चेन अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं, इनके स्ट्रक्चर में और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होती है, काफ़ी हद तक ये सिमिलर होते हैं अपने स्ट्रक्चर, और इनकी जो केमिकल द वे दे विल रिएक्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ये काफ़ी सिमिलर होता है, और इस बेसिस पे हम उनको एक होमोलोगस सीरीज कहते हैं कि यस दे आर द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। अब इसमें क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज में क्या बेसिक होता है, हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला। जैसे कि हमने कहा है, अगर हम बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग इन फर्दर डिटेल, जैसे हम बात करें एल्केन की, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ओके, यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे CnH2n एंड +2। ओके, फाइन, तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसका डबल +2 उसमें हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होगा। ये सिंपल हाइड्रोकार्बन्स का है। ओके, अगर हम बात करेंगे एल्कीन की तो CnH2n होता है, एल्काइन CnH2n-2 हो जाता है। तो बिकॉज डबल बॉन्ड के कार्बन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी और कंपाउंड आयन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो देयर वैलेंसी गेट सेटिस्फाइड। फाइन, तो अगर हम होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं तो होमोलोगस सीरीज में क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर है और दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस जनरल फार्मूला। अगर आपको ब्यूटेन का फार्मूला याद ना रहे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर n की पोजीशन में आपको 4 रखना है। ओके, सो आपने रखा C4, फिर आपने n को 2 × 4 + 2 कर दिया, तो 8 + 10, C4H10 becomes the formula of butane. Okay, सिमिलरली आप ब्यूटीन और ब्यूटाइन इन सब का फॉर्मूला भी आप
केमिकल जो फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं इस जनरल फॉर्मूला से। फाइन, तो जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं इन सब का एक जनरल फॉर्मूला होता है जिससे ये रिप्रेजेंट होते हैं। फाइन, सेकेंड थिंग आती है दैट दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मैथड्स। अगर हमें मीथेन बनाना है, प्रोपेन बनाना है, ब्यूटेन बनाना है, पेंटेन बनाना है, तो हम मोर लेस सिमिलर मैथड से इनको बना सकते हैं, सिर्फ एक एक कंपाउंड का एडिशन उसमें करवाना होता है। फाइन, सो दे कैन बी प्रिपेयर्ड। सेकेंड, नेक्स्ट थिंग इज दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, चाहे हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद द डिफरेंट कंपाउंड्स, वो मोर और लेस सिमिलर होती है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। अगर हम बात करेंगे किसी की भी ग्रुप की, कोई भी ग्रुप की, तो ये एक दूसरे से CH2 से डिफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं प्रोपेन की और अगर मैं बात करूं ब्यूटेन की, तो प्रोपेन में अगर मेरे पास C3 है, उसमें एक कार्बन ऐड करना है, और जो हाइड्रोजन है उसमें 2 हाइड्रोजन और ऐड करने हैं, दैट विल बी द नेक्स्ट वन। ओके, सो पेंटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अगर हम सीक्वेंस से बढ़ते जाएंगे तो इसमें सिर्फ CH2 ग्रुप CH2 और ऐड होता जाता है जैसे जैसे हम बढ़ते हैं चेन में, चाहे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, जैसे हेक्सेन, ऐसे जैसे जैसे हम नंबर से बढ़ेंगे वैसे वैसे उसमें सिर्फ CH2 ऐड होता जा रहा है। फाइन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट दे शो रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी काफ़ी सिमिलर होती है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ता जा रहा है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वॉल्यूम, इन सब में उसी अकॉर्डिंग ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज होता जाता है। ओके, सो दिस इज द वे होमोलोगस सीरीज आर सिमिलर। ओके, हमने क्यों एक पर्टिकुलर सेट में, एक ग्रुप में कंपाउंड्स को डाला है? बिकॉज दे आर सिमिलर इन देयर प्रॉपर्टीज, दे आर सिमिलर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर सिमिलर इन द वे दे कैन बी मेड, दे आर सिमिलर इन द वे they are group like melting point, boiling points are increasing. Fine. So that's how the homologous series have been made, which is having the compounds जो कि काफ़ी हद तक similar हैं एक दूसरे से। फाइन, वो सिर्फ एक दूसरे से CH2 से डिफर करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, कैसे कैसे उनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, कैसे कैसे अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बिकॉज वी आर सेइंग वी हैव मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। तो ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, that the secret lies in the functional group which get attached with them. Okay, और हम जो functional group की बात करेंगे next video में करेंगे, so wait till the next video. Till then, keep watching AudioTubers. If you have any question, anything left, please share, write in the comment box. Okay, you can share it with your friends. You can subscribe to the channel if you have not subscribed yet, because I'm constantly working so that your preparation can be good, and I can help you in preparing better for your examinations, and more importantly for the better understanding of your concepts. Thank you for watching AudioTubers.